لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مہدویت کے سلسلے سے جو 3 دن کا یہ ویبنار رکھا گیا ہے، اس کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ وقت کے امام کو پہچانیں، جو آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے اور بالخصوص عصر ظہور میں زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اور آپ امام کو نہیں پہچانیں گے تو دوسروں کو کیسے پہچانوائیں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ ہمارے پاس بہترین کتاب ہے، ہمارے پاس بہترین امام ہے، ہمارے پاس بہترین دین ہے؟ ہم کیسے دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم خود امام کو نہ پہچانیں؟ لہٰذا ہم اور آپ کو آخری زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا گیا، مولا اگر عصر ظہور میں ہم ہو، آخری ایام میں جہاں پہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ ہو، اس دوران ہم کیا اعمال انجام دیں؟ تو امام نے فرمایا کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی۔ جب اس دعا پہ ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو واقعاً ایک اسلامی عقائد کا بہت بڑا سرچشمہ ہے یہی دعا۔ اسی دعا پہ دقت کریں، یہاں پہ توحید ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔ کہا تو فلسفہ توحید کیا ہے، فلسفہ نبوت کیا ہے، فلسفہ امامت کیا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ اگر اس دعا پہ ہم اور آپ غور کریں تو یہ دعا صاف طور پر واضح کر رہی ہے کہ اگر وقت کے ایمان کو نہیں پہچانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم ظاہری طور پر تو شاید مسلمان زندگی کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن اگر وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے ہوں تو کچھ بھی نہیں کیا گویا۔ لہٰذا ہمارے معصومین نے بہت سختی سے منع کیا کہ اگر ایک انسان دین کو نہیں سیکھتا، امام کی معرفت نہیں حاصل کرتا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ مثلا ہم اور آپ کو نماز تاخیر کرنے پہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نماز ظہر کو تاخیر سے بھی پڑھ لیں تو مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ نے امام کو پہچاننے میں تاخیر کی یا امام کو نہ پہچانے تو اس میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ لہٰذا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے کانفرنس رکھیں، اس طرح کے سیمینارز رکھیں، اس طرح کے ٹاک شوز رکھیں، اس طرح کے آج کے جو محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقت امام کو پہچانیں۔ لہٰذا جید علماء کو ہم نے دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس ویبنار کا مہمان ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر زین العابدین قبلہ، نیپال سے ہیں، امام جماعت ہے وہاں کے، اور تقریباً کچھ سالوں سے نیپال میں اپنے دینی اور اجتماعی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو خدا کامیاب و کامران فرمائیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے مومنین کے لیے آپ نمونہ بنے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے دوسرے مقرر جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ شہر کرگل کے جید علماء میں سے، اجتماعی اور سیاسی میدانوں میں آپ فعال رہتے ہیں، وہاں کے الحمدللہ دینی فرائض آپ وہاں انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوست برادر عزیز جناب سید حسین قبلہ ہے، جو بہترین آواز کے مالک ہیں، قصیدہ پیش کرتے ہیں مختلف دینی اور اجتماعی محافل میں۔ خدا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور کامیابی عطا فرمائیں۔ لہٰذا میں محفل کا آغاز کے لیے، جیسے کہ ہم سب کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ کلام مجید کے بعد ہم اور آپ ہمیشہ مدح ائمہ اطہار علیہم السلام اور مدحت پیغمبر گرامی اسلام، نعت شریف پیغمبر گرامی اسلام سے اپنے ہر محفل کو مزین کرتے ہیں۔ لہٰذا میں دعوت دوں گا برادر گرامی جناب سید حسین کی خدمت میں کہ آپ اپنے نعت سے یا اپنے قصیدے سے آج کے اس محفل کو مزین فرمائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اے حجت حق در جہاں، یا مہدی آخر زمان، اے حجت حق در جہاں، یا مہدی آخر زمان، دے شفیع معاصیہ، یا مہدی آخر زمان، دے شفیع معاصیہ،
یا مہدی آخر زمان. Yas kes pitan på en barat, yeri byaz na kom log se najat. Yas kes pitan på en barat, yeri byaz na kom log se najat. شعلتو تقبا نجات یا مہدی آخر زمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. شعلتو تقبا نجات یا مہدی آخر زمان. Yang fakhla shah sale gopal tal se zulum tigna tamam. Yang fakhla shah sale gopal تل سے ظلم تگنا تمام. ینگ بیوں سے شاف نارے توپا یا مہدی آخر زمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نارے توبہ یا مہدی آخر زمان. میوں لینو دا جالگا سے یود میں تاق مزیر باسا سے یود. میوں لینو دا جالگا سے یود میتا مزیر باسا سے یود. یانگون فرتاق نون سا سے یود یا مہدی آخر زمان. Yang firtaq non sanseyot ya mehdi akhir zaman. Yang yot panam yola seyot amma zulum boga seyot. Yang panam yola seyot amma zulum boga seyot. Yang byung mala sakr dyang seyot ya mehdi akhir zaman. Yang byung mala sakr dyang seyot ya mehdi akhir zaman. اللهم صل على محمد بہت بہترین آواز میں برادر گرامی سید حسین قبلہ بہترین انداز میں نعت شریف پیش کر رہے تھے. مدح امام زمان صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وطی زبان میں. ظاہراً شیخ زین العابدین کے لیے یہ نیا رہا ہوگا ہمارے زبان میں. بہت ہی اچھا بہت بہترین آواز میں انہوں نے ہمارے جی. سعید حسین صاحب آپ بھی رہیے گا. جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لیفٹ ہو جائیں تب جائیے گا. ابھی زینب مجاہد صاحب نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ آن لائن رہیے گا تاکہ اسپیچ سن سکیں انشاءاللہ. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں برادر گرامی سید حسین قبلہ کا. اس کے بعد بغیر کسی
حائل ہوئے بغیر کسی وقت کے لیے، میں دعویٰ دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ عبداللہ جلیلی کی خدمت میں کہ آپ انشاءاللہ آج کے اس موضوع پر ویبنار کے حوالے سے امام مہدی کی شخصیت اور امام مہدی کی معرفت اور ساتھ ساتھ میں عصر حاضر کی ضرورت اور تقاضوں کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے کہ آج کا جو ماحول دنیا بھر میں پیش آ رہے ہیں، جو ہم اور آپ کو روایتوں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آخری زمان میں ہر جگہ فساد ہوگا، جنگیں ہوں گی، اجتماعی اور دینی فسادات وجود میں آئیں گے، اخلاقی فسادات وجود میں آئیں گے، جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں ہم اور آپ کو امام زمان اور امام زمان کے ایک انصار کو، امام زمان کے ایک منتظر کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ان سب پر آپ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ 20-20 منٹ جو مشخص کیے گئے ہیں انشاءاللہ وقت کا آپ لوگ رعایت کیجیے گا۔ میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی کی خدمت میں، آپ لوگ ایک صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہ صلی علی محمد وعجل فرجه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین، الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاة والسلام: المنتظر لامرنا کالمتشحت بدمه فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے میں مولانا جاوید حبیبی صاحب کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پلیٹ فارم کو یہاں مہیا کیا لوگوں کے لیے، تاکہ ناظرین کرام علماء کے ان کاوشوں سے فائدہ اٹھائے، تو تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے مولانا یہاں زین العابدین صاحب موجود ہیں، ہم ان کو بھی تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی آج کے اس محفل میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ خدا انہیں مزید توفیقات سے نوازے۔ مولا کائنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: المنتظر لامرنا، جو لوگ منتظر ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ حکومت عدل الہی دنیا میں قائم ہو، اگر اس کے منتظر ہوں، یعنی امام زمانہ آ کے ایک عادلانہ حکومت قائم کرے، جس کے لیے آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا میں قیام قسط، عدل و قسط ہو، یعنی ایک عدالت پر مبنی نظام حکومت قائم ہو، اور خدا کی جانب سے انبیاء سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے امام زمانہ تک خلافت الہی کا سلسلہ ہی چل رہا ہے، جو حقیقت میں روئے زمین پر، زمینی سطح پر کبھی آج تک الہی منصب الہی جو عدالت پر مبنی ہے، ایسی حکومت ابھی تک تشکیل دینے میں یا قائم ہونے میں کامیاب نہیں رہا ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ ہمیں وعدہ دیا ہے کہ دنیا اگر آخری چند لمحہ بھی اگر باقی رہے تو حجت خدا ظہور فرمائے گا، اور اس لمحے میں یا اس دن میں جو ہے خدا کے جو ہے خدا کی طرف سے ایک ایسی حکومت قائم کی جائے گی جو عدالت سے بھرا ہوا ہوگا، عدالت پر مبنی ہوگا، وہ اس میں کس ظالموں سے جو ہے مظلوموں کا حق دلایا جائے گا، اور جو جہاں پہ غیر عادلانہ نظام ہو ان نظام کو ختم کر کے عادلانہ نظام قائم کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی محبان اہل بیت ہے، سب العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان، یعنی ہم العجل تو کرتے ہیں، مولا آپ جلدی ظہور فرمائیے تاکہ دنیا میں عدل الہی کی ایک حکومت جو ہے قائم ہو۔ لیکن کیا حقیقت میں ہم امام کے منتظر ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں امام کو پہچان کے العجل کہہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جیسے کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط پہ خط لکھے اور انہوں نے بھی یہ نعرہ بلند کیا تھا العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، یعنی مولا آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیے،
हम आपके मुंतजिर हैं। लेकिन वहां हमने देखा कि जब मौला ने जनाब मुस्लिम को अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा तो जनाब मुस्लिम के हाथों जोग दर जोग आके बेअत कर लिया। लेकिन जब दुश्मनान इस्लाम जब इस चीज को, जब दुश्मनों को पता चला, दुश्मन दीन को, कि यहाँ पे मौला तशरीफ ला रहे हैं, तो इस चीज को भनपते ही मौला को ताकि न आने दिया जाए, कोफा तक न पहुंचने दिया जाए। कोफा के अंदर जो है लोगों को जो है कत्ल गारत से डराया, लोगों को धमकाया, और जो पैसे से खरीद सकते थे पैसे से खरीद कर जनाब मुस्लिम के इर्द गिर्द से सबको जो है तितर बितर कर दिया। अल अजल तो वो भी कह रहे थे और फिदा होने के लिए वो भी तैयार थे, लेकिन आजमाइश के मौके पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी आज अल अजल कह रहे हैं। क्या हम बिल्कुल तैयार हैं कि इमाम के ऊपर जो है अपनी जान को कुर्बान कर दें? हम अपने ऊपर जो जितने भी हुकूक हैं हमारे ऊपर, जो भी वाजिबात है उसको हम अदा करें, और जो मुहर्रमात है उससे हम परहेज करें, और अपने जो है इर्द गिर्द जो है जो जिस समाज में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, क्या हम उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां तमाम तर जो गैर इंसानी या गैर शरई जितनी भी काम हो रहे हैं उसको खत्म करके इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए क्या हम जो है एक तमहीद के तौर पर हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं या नहीं? हमें इस चीज के ऊपर हमें नजर रखना है, क्योंकि वक्त अब हमें दुनिया के हालात को मद्देनजर रखते हुए, आज हम ईरान के जवानों को देख रहे हैं, इराक के, शाम के या यमन के, वो इतनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं इमाम ही के लिए, इमाम के नाम पे, अपने घरों तक छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इतनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। क्या हम भी ऐसे ही जो है तैयार है? क्या हम अपने जो इर्द गिर्द, जो अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके हुकूक को अदा करने के लिए हम तैयार हैं? जो हमारे कानून पे जो हुकूक है, तो इमाम जब आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो इमाम एक आदिलाना हुकूमत कायम करेंगे। जो जालिम होंगे उन जालिमों से मजलूमों को हक दिलाएंगे। तो कहीं हम जालिमों के सब में तो नहीं है, कहीं हम अपने वालिदैन के हक को मार के तो नहीं बैठे हैं, कहीं हम अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने समाज के अंदर जो हुकूक हमारे गर्दन पे है क्या हम उसको अदा कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कल इमाम तशरीफ लाए और हमको जालिम ठहराए और मजलूम को हमसे हक दिलाए। तो हमें सबसे पहले जो है मारिफत की जरूरत है। मन लम यारिफ इमाम ज़मान ही मात मीततन जाहिलिया, जिसको इमाम ज़माना की मारिफत न हो वो उसको जाहिलियत की मौत मरना है। तो हमें सबसे पहले मारिफत की जरूरत है। मारिफत के लिए सबसे पहले अहम चीज है, सबसे पहले हम ये जो इमामत का जो मनसब है, मनसब इमामत को समझना बहुत जरूरी है। मनसब इमामत को जब हम मनसब इमामत समझेंगे ठीक तरह से कि भाई ये मनसब है क्या चीज, ये खिलाफत है क्या चीज, जो खुदावंद आलम ने अता किया है, जो ये मनसब इलाही है, खुदा ने अता किया है, ये मनसब है क्या चीज, रसूल के बाद जो है अइम्मे ताहिरीन की तरफ मुंतकल होता आ रहा है ता इमाम ज़माना तक। तो ये अगर मनसब सही तरह से हमें समझ में आ जाए कि ये मनसब है क्या चीज, इस हुकूमत के अंदर क्या होगी, ये किन किन खुसूसियात के हामिल है, क्या हम मनसब इमामत को न पहचाने तो क्या हम इमाम को पहचान सकते हैं? जब तक हम इमाम के मनसब को न पहचाने, इमामत को न पहचाने, तो हम इमाम को नहीं पहचान सकते हैं। जिस तरह से कोफा वालों ने नहीं पहचाना इमाम को, हालांकि इमाम उनके सामने आने के बाद करबला में इमाम ने बारहा हुज्जत किया कि मैं नाइब खुदा हूं, खुदा की तरफ से खलीफा हूं जमीन पर, रोए जमीन पर, और मैं रसूल का नवासा हूं, मैं जहरा का फर्जंद हूं। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, इसलिए कि वो इमामत है क्या चीज उस चीज को नहीं समझते थे। अगर इमामत के मनसब को ये समझते तो जरूर इमाम समझ जाते। तो आज हमें जरूरत है कि सबसे पहले जितने भी उलमा हैं या मुबल्लिगीन हैं, हमें सबसे पहले तो नबूवत का जो मनसब है, मनसब नबूवत, मनसब इमामत, ये है क्या चीज आखिर, ये इमामत की जो मनसब की बात लोग करते हैं उसको समझाने की जरूरत है लोगों को कि भाई जो इमामत ये एक ऐसी खिलाफत है जहां पे सिवाय अदालत के कुछ भी नहीं है, जुल्म का शाइबा बिल्कुल नहीं है। और इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद ऐसी हुकूमत कायम होगी, ऐसी खिलाफत कायम होगी जो खुदा की तरफ से होगी, जिसमें जर्रा बराबर किसी किस्म का किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा।
ظالموں سے مظلوموں کو حق دلایا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اگر امامت کے منصب کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کے بارے میں ہم اگر لوگوں کو بتائیں تو خود بخود جو ہے لوگ جو ہے امام کی معرفت کی طرف یا امام شناسی کی طرف جو ہے لوگ رغبت اور دلچسپی پیدا کریں گے یا ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی. تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ امامت جو امام کے جو منتظرین کے دعویٰ کرتے ہیں ہم منتظر ہونے کی ہم منتظرین امام میں سے ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے دو طرح کے جو ہے انتظار ہو سکتے ہیں. ایک سطحی انتظار اس میں صرف امام زمانہ کے حسب نسب کے علاوہ کہ امام تشریف لائیں گے اور ہم ایک الہی حکومت قائم ہوگی اس میں عدالت ہی عدالت ہوگی تو یہ ایک سطحی ہے ایک سطحی صرف معرفت ہے. یہ کسی سے بھی اگر پوچھے کسی دنیا کے مشہور و معروف شخصیت کا اگر نام یا کچھ اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہیں گے یہ فلانا کا رہنے والا ہے ان کا حسب نسب یہ ہے. اس سے زیادہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو امام زمانہ تشریف لائیں گے منصب امامت کے ساتھ خلافت کے ساتھ جب تشریف لائیں گے تو جب تک بھئی یہ خلافت ہے کیا چیز یہ منصب ہے کیا چیز اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے ہمیں جو ہے آگاہی دینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو امامت کے منصب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا میں ہمارے جوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہے ہم امامت کے سلسلے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے چند نقطے میں نوجوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ جب تک امامت کے منصب کو نہ پہچانے امام کو پہچان بالکل نہیں سکتے. یہ منصب ہے کیا چیز پہلے نبوت کے منصب کو امامت کے منصب کو سمجھیے پھر اس کے بعد اس کے صفات کے حامل امام کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. نمبر دو یہ کہ دشمن شناسی آج کے دور میں دشمن جس طرح سے لوگوں کو جو اسلحے کی جنگ سے زیادہ آج جو ثقافتی جنگ مسلط کر کے رکھا ہے ہمارے جو ہے با ایمان بھائی بہنوں کو ورغلا کے ان کو شہوات نفسانی میں مبتلا کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے حیوانیت کی طرف لے جانے کی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ بھئی پہلے ہم دشمن کو پہچانے. خداوند عالم نے بھی قرآن میں یہی فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے تم دشمنی رکھو. اور آج کے دور میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دشمنان اسلام جو ہے وہ مغرب اور مغرب پرست لوگ ہیں. یہ سب سے بڑا دشمن ہے دین اسلام کا جو یہ چاہتا ہے کہ دین کے اندر کوئی اسلام کا صرف نام ہی باقی رہے اس میں نہ حیا ہو نہ اس میں غیرت ہو لوگوں کے پردے ختم ہو جائے لوگ اور عیانیت کی طرف جائے لوگ حیوانیت کی طرف جائے. آج سوشل میڈیا بالکل یہی چیز جو ہے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دشمن کو پہچانے اور دشمن کو پہچاننے کے بعد سب سے اہم جو آج کی ضرورت ہے ہم اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے کے اندر صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اتحاد ہی وہ زرخیز زمین ہے جس پہ دین کا فصل اگ سکتا ہے. قرآن و اہل بیت کے تعالیم کا فصل جو ہے زرخیز زمین پہ ہی اگ سکتا ہے. تو وہ زرخیز زمین ہے اتحاد کے زرخیز زمین. جب تک ہمارے اندر اختلاف ہے جب تک ہمیں ایک دوسرے کے اندر جو ہے محبت نہیں ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں نفرت کے اوپر دین قائم ہرگز نہیں ہو سکتا. دین جو ہے یہ دین محبت ہے. لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جہاں بھی رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ جتنے بھی لوگ جہاں بھی رہتے ہیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں اور اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے جو ہے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. شیطان ہمیشہ وہاں پر غالب آیا ہے جہاں لوگوں میں تفرقہ لوگوں میں اختلافات ہوں اور شیطان ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے دشمنان اسلام کہ لوگوں میں تفرقہ پیدا کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو. تو اتحاد سب سے اہم چیز ہے. اور تیسری بات یہ کہ جوانوں میں رضاکارانہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہمیشہ جو ہے معاشرے کے لیے جو ہے فی سبیل اللہ جو ہے اپنے وقت میں سے نکال کر جو ہے لوگوں میں دین و تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اور لوگوں جو محتاج ہو ان کے خدمات کے لیے یا اپنے معاشرے کے اندر جو بھی کار خیر یا خدمات انجام دے سکتے ہیں
اس کے لیے جو ہے رضاکارانہ طور پر اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو ہے اگر معاشرے کی خدمت کے لیے آگے آئے تو خود بخود جو ہے خداوند عالم اس میں راہ نکال لیتا ہے، لوگوں کو ائمہ اطہار سے، اہل بیت کے تعالیم سے نزدیک ہونے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ صبر و استقامت بہت ضروری ہے۔ ہم یہی خیال لے کے بیٹھتے ہیں کہ جس معاشرے میں بھی جائیں، چاہے ہم علماء ہو یا عام ہو، کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب میری ہی خیال کو لے کے سب لوگ چلیں، بالکل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک معاشرے میں رہنے والے مختلف خیالات کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے خیالات کو سمجھتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ جہاں پر بھی کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ یا برا سلوک کرے تو اس کو بھی صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ اپنا مقصد کیا ہے؟ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کرنا، اور وہ مقدمہ ہے ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اور اپنے گھر کے جو ہے افراد کو پاک و پاکیزہ بنائیں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیم سے آراستہ کریں، اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان کے جو ہے آپ ان کے بارے میں فکر کریں، ان کی تعلیمات کا سلسلہ آپ جو ہے فراہم کریں، ان کو جو ہے دین حق کی طرف جو ہے لانے کی آپ کوشش کریں۔ اس راہ میں جس طرح کے بھی خیالات کے لوگ آپ کو ملے، چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، ہر چیز کو صبر و استقامت سے جب تک آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے آپ کبھی جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جیسے آج ہم گھر چلا رہے ہیں تو گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد کے 5 خیالات الگ الگ ہیں، ہر ایک کا سوچ الگ ہے، لہذا مجھے ہر سوچ کو جو ہے سمجھتے ہوئے ایک درمیانہ راستہ نکال کر اس گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے خیالات سے نہیں ملا تو اس سے لڑ بیٹھو اور گھر کو ہی برباد کر دو۔ آج ہمارے جہاں بھی ہمارے معاشرے میں، چاہے ہندوستان کے جس کونے میں بھی جائے، دنیا کے جس کونے میں بھی جائے، جہاں اختلافات اگر ہے تو وہ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے یا قرآن نے ہمیں تاکید یہی کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں صبر کیے بغیر اور لوگوں کے جو ہے طنز و طعنے سنے بغیر، لوگوں سے کے ناز و نخرے سنے بغیر ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ائمہ اطہار کے سامنے دشمنان اسلام آ کے ان کو گالیاں دیتے تھے، لیکن امام وہ اس کو بالکل خندہ پیشانی سے جو ہے حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ یہی چیز ہمیں بھی کرنا ہوگا، لہٰذا انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ الرحمن اس طرح کے اگر سیمینار جو ہے ہمیشہ ہوتے رہے تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے ناظرین جو ہے انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے، اور بولنے والے بھی انشاءاللہ الرحمن چاہے کرگلی زبان میں بولے یا اردو میں بولے یا جس لینگویج میں بھی بولے، انشاءاللہ الرحمن لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند ہوگا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے آپ لوگوں کے توفیقات میں اضافہ ہو اور ہم سب امام زمانہ کے حقیقی منتظرین میں شامل ہوں۔ الہ آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت رعایت کرتے ہوئے بہترین انداز میں آج کے اس موضوع پر گفتگو کی۔ آپ نے انتظار کے فلسفے کو بتایا اور ساتھ ساتھ میں منصب امامت کی طرف آپ نے روشنی ڈالی۔ اس کے بعد جوانوں کی ذمہ داری عصر ظہور میں کیا ہے اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ بہترین گفتگو رہی، اور ساتھ ساتھ میں عصر حاضر کس طرف جا رہا ہے اس میں ہم لوگ کس طرح اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، اس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ کا ہم استے دل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جیسی شخصیات ہم سب کے لیے سرپرست ہیں، آپ جیسے بزرگوں کے مشورے سے ہی ہم جوان لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں آپ بزرگوں کے مشورے سے ہی اپنی زندگی کو آج کے اس دور میں بہتر طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا آج ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ امام قرآن کا یہ دستور ہے، یا امام ہمارے ساتھ ظاہری زندگی بسر کر رہے ہوں گے یا امام غائبانہ طور پر زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ لیکن آج کل جو ہمارے جامعے میں ایک فکر بنی ہوتی ہے کہ امام پردے غیب میں چلے گئے ہیں، تو گویا ایسے لگتے ہیں کہ بالکل امام کہیں جگہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ درحال کہ اسلامی تعلیمات کے یہ سراسر خلاف ہیں۔ امام پردے غیب میں ہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ ہم امام کو نہیں پہچان رہے، یعنی ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے، امام کس طرح کے شخصیات ہیں، اسلام کی پرسنالٹی کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح روایتوں میں تشریح دیا گیا کہ امام گویا پردے غیب میں جانے کا مراد یہ ہے کہ امام جیسے سورج بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کا نور اور اس کی گرمی ہم لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل ایسے امام جب پردے غیب میں چلے جاتے ہیں تو امام کے ہدایات اور امام کی تعلیمات سے مخصوص افراد حاصل کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں امام
जामे में दीन को तहरीफ से बचाते हैं और साथ साथ में अखलाकी और बद अखलाकियों से लोगों को बचाते हैं। लिहाजा हम और आपको बताया जाता है जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो हर कोई कहेगा कि इनको तो हमने देखा है, इन्होंने हमें ये सिखाया था, इन्होंने हमें इस मुकाम पे ये पहुंचाया। लिहाजा पर्दे गैब में अगर इमाम पर्दे गैब में है और असर ग़ीबत में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इस दौर में भी इमाम से बहुत से खास अफराद मुलाकात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इमाम बिल्कुल क़त्अ राबिता है, किसी से मिलते नहीं होंगे। लिहाजा अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ये इंतजार में न रहें कि कब सूरज बादल से निकलेगा तब हम उसकी नूर से फायदा उठाएं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा ले जाएं ज़ुहद में, तकवा में, परहेजगारी में, इल्म में कि हम आप और उस पर्दे के पीछे उस बादल के ऊपर हों जहां से हम सूरज से मुस्तकीम तौर पर हिदायत दे सकें। बिल्कुल वैसे ही हम इमामत के बारे में, महदवियत के बारे में, जैसे शेख साहब ने बताया, जब तक हम महदवियत को नहीं पहचानेंगे तो इमामत को नहीं पहचानेंगे तो वाकई माना में हमें इमामत की जरूरत को ही एहसास नहीं होगा। हम आपका अस्ते दिल शुक्रिया अदा करते हैं शेख साहब और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी सवालात होगा हम आप दोनों से शेख ज़ैनुल आबिदीन के स्पीच के बाद आप दोनों से हम क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे थोड़ी देर, जवानों की जो क्वेश्चन आ रहा है उस हवाले से। तो मैं फिर एक बार हमारे मेहमान अजीज जनाब हज़रतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आग़ाज़ ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर होंगे कि आप इंशाल्लाह 20 मिनट में आपकी जो स्पीच है, आपने फरमाया था कि हम महदवियत को दूसरे अदियान में बयान करना चाहेंगे, क्योंकि महदवियत सिर्फ शियों से महदूद नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के हम अदियान इब्राहिमी, हम अदियान गैर इब्राहिमी, सब में महदवियत और एक मुसलह आएगा, ये फिक्र हाकिम है और ये जरूरत सब में है। लिहाजा आप इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अपने नाज़रीन से भी अर्ज करूंगा कि आप लोग इस लिंक को शेयर करते रहिए ताकि बिस्तर से बिस्तर अफराद आज के इस प्रोग्राम वेबिनार में शामिल हों। आप सबसे गुजारिश है जितने भी अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनमें इस लिंक को शेयर करें। और मैं जनाब हज़रतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आग़ाज़ ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर होंगे कि आप इंशाल्लाह अपनी तकरीर से मोमिनीन को मुस्तफीज फरमाएं। आप सब नारे सलवात से उनका इस्तेमाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फंतज़िरू इन्नी मआकुम मिनल मुंतज़िरीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों, आज के इन मुनासिबतों को खुसूसन विलादत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब शेख साहब की बेहतरीन तकरीर के बाद बहरहाल मैं खाकसार शायद उस लायक न था। बेहतरीन सुखनदानी, बेहतरीन तकरीर आपने सुनी जो तकवा के ऊपर भी मबनी सुखनदानी थी और बेहतरीन उन्होंने ताकीदात हमारे जवानों को किए। मैं फिर एक मरतबा अलकायम मीडिया का, खुसूसन शेख जवाद हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरजमीन नेपाल से, हिमालय पर्वत से इन्होंने बहरहाल इस लायक हमें समझा कि मैं उस अजीम कारगिल के पर्वत तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। मेरे जवानों, कबल इसके कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, चूंकि मुख्तसर वक्त है, चंद चीजों के ऊपर तवज्जो को मरकूज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, हमारे दुश्मन ने हमेशा कोशिश की है अगर कुछ भी हमारे यहां उनके बारे में हो, अगरचे मनफी पहलू से भी हो, तो वो मुस्बत एडवाइस के तरीके से, मुस्बत तबलीग की सूरत से वो जलवा दें। के हमारे यहाँ की बातें उनके यहाँ बहुत ज्यादा है, मगर हमारी कौम गाफिल है, जबकि हमें भी इससे इस्तेफादा करना चाहिए और उसको अलम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज जो ये मीडिया का जमाना है, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई हादसा, अगर कोई वाकया पेश आ जाता है तो उस वाकया की हकीकत तक पहुंचना आज के जमाने में बड़ा मुश्किल हो गया है, कंफ्यूज हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर एक वाकया पेश आता है तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे वाकयात घड़ देते हैं जिसका पहचानना, जिसका जानना, जिसका इदराक और हकीकत तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा फर्ज कीजिए मैं एक सवाल करूं, आज के जमाने में अभी तक
लोगों को कोविड की हकीकत के बारे में पता नहीं है, लोगों को कोरोना की असलियत का नहीं मालूम है, लोगों को ये जो वैक्सीन लग रहा है इसके बारे में मालूम नहीं है, जबकि दुनिया इतनी तेज हो गई है, जमाना इतना तरक्की कर गया है, और मीडिया और रसाना ये सब चीजें आपकी खिदमत में है। याद रखिएगा, इसी मीडिया के जरिए से असली इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की ज़हूर से पहले इतने डुप्लीकेट इमाम ज़मान तैयार कर दिए जाएंगे और उनकी ज़हूर की खबरों को आपके दरमियान में नशर की जाएगी कि आप असली इमाम ज़मान के बारे में जब ज़हूर की खबर होगी तो कंफ्यूज करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि हम इमाम ज़मान को उस तरीके से, जिस तरीके से हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम ने, यहाँ तक कि हमारे सालेह उलमा ने उनकी पहचान बताई है, उनकी मारिफत बताई है, हम उनको पहचाने। चूंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये कोई इज्तिहाद का मसला नहीं है कि मुजतहिद ऐलान करें कि ये इमाम ज़माना है और ज़हूर कर गए तो हम जो है वो तकलीद में है, लिहाजा नहीं, बल्कि आपको इसमें खुद कोशिश करनी है कि हमारे इमाम ज़माना कैसे होंगे। बहरहाल अहादीस में गौर किया होगा कि लोग पूछेंगे कि आप दलील दीजिए, तो इमाम ज़मान अपने इस बात पे दलील देंगे, ये इस बात की दलील है कि मीडिया इतना प्रोपेगेंडा करेगा, और यही हो रहा है। आप क्या समझते हैं, ये जो करबला में अरबाईन होता है ना, इसमें भी डुप्लीकेट इमाम ज़माना खैमा लगाए बैठे होते हैं। आज यमन में, इराक में ये जो खिलाफत का इद्दिआ दोबारा किया जा रहा है, जिसमें अंगुश्तरी नबी की उस नकल यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल हक का वो परचम, पता नहीं मैं बहुत ही डीप अर्ज कर रहा हूँ, उलमा के मौजूदगी में जसारत कर रहा हूँ, ये जो दाइश के हाथ में, ISI के हाथ में जो फ्लैग है, परचम है, ये वही परचम होगा जो इमाम ज़माना के हाथ में वो वही होगा। लिहाजा कब्ल इसके कि इमाम ज़माना के परचम को देखकर लोग जमा ना हो जाए, लिहाजा उन्होंने इस परचम को इतना शाये किया है कि देखते ही इस पर टेररिज्म का लेबल लग जाए, कोई जमा ना हो। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं, लिहाजा इन नुक्तों की तरफ भी तवज्जो रखिएगा। ये जो दाइश के हाथ में परचम है, ये उनका गासिबी परचम है। हकीकत यही है, जब सवाल किया गया कि आखिरी इमाम के हाथ में परचम कैसा होगा, तो आपने फरमाया जो मेरे खातम की मोहर की निशानी है वो होगा, और वो वही कलिमतुल हक है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। लिहाजा फरेब मत खाइएगा, धोखा मत खाइएगा। अरे भाई, ये तो दाइश के हाथ में परचम था। लिहाजा हम अपने इमाम ज़माना को, बहुत से हजारों लोग इस लजबाजी में और जिद में कि ये परचम फला के हाथ में था, लिहाजा आप इमाम के हाथ में इमाम को नहीं मानेंगे। लिहाजा इन तमाम चीजों से बाखबर रहिएगा। आज का जो मौजू है बहुत ही शीरीन मौजू है, बहुत ही जबरदस्त मौजू है, और वो ये है कि दीन हिंदुइज्म, अलबत्ता मैं इसको आइन कहता हूं या मकतब कहता हूं, मकतब हिंदुइज्म में क्या इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ का जिक्र आया है? सबसे पहला सवाल, अगर जिक्र आया है। दूसरा सवाल, हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में इमाम महदी को किस नाम से पुकारा गया है? अल्लाह अकबर, बहुत शीरीन है। और ये याद रखिएगा, हिंदू मजहब आज का मजहब नहीं है। इस्लाम 1443 साल का मजहब है, लेकिन हिंदू मजहब 850 साल हो गए हैं। नेपाल की सरजमीन पे अभी 5000 साल पुराना मंदिर है, तो इसका मतलब यह है कि वाकई 8500 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। लिहाजा 8500 साल पहले की उन किताबों में अगर इमाम महदी का नाम, औसाफ अगर लिखा गया हो, और आज हमारी किताबों में खुलकर कह दूं, कुरान में और अहादीस में सेम एक जैसे औसाफ हो, तो ये आपकी हक्कानियत की दलील है। और आप अपने गैर मुस्लिम यानी खुसूसन हिंदू दोस्तों के सामने आप बयान कर सकते हैं। देखिए, 4-5 धर्मों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार होकर आया था, मगर वक्त कम है। मैं अर्ज कर दूं, नेपाल की सरजमीन पर साले गुज़िश्ता एक बहुत बड़ा शहर है नेपालगंज, हमने वहां सेवियर ऑफ द वर्ल्ड यानी मुंजिए जहान बशरियत के नाम से पहली मर्तबा जुर्रत की, और इमाम ज़मान के नाम पे हमने वहां एक सेमिनार किया, एक बड़े से बाग में। उसमें बहुत सारे हिंदू भाइयों को भी बुलाया, हमारे मुसलमान दोस्तों के साथ, खुसूसन शिया दोस्तों के साथ वो आए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, और बहुत ही जबरदस्त की शख्सियत के बारे में आपने बयान किया, करीम है, और तमाम औसाफ बहरहाल जो भी हमने वहां बयान किया आप समझ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं,
इनका कोई ऐसा नाम बताइए जो हमारे हिंदू धर्म में हम जल्दी समझें। देखिए मेरे दोस्तों, कारगिल के रहने वाले जवान, एक बात याद रखिएगा, ये जो क्रिश्चियन है ना, जिस मुल्क में जाते हैं, जिस जबान में जाते हैं, जिस इलाकाई में जाते हैं, अपने मसाइल को उनकी जबानों में ढाल के बयान करते हैं। और यही एक वजह यह है कि लोग जल्दी से क्रिश्चियन को और इस मजहब को अपना लेते हैं, क्योंकि उनकी जबान में सादगी से बयान कर दिया। लिहाजा मैंने इस जवान से एक जुमले में कहा, मैंने कहा इमाम मेहदी को आपकी लैंग्वेज में विष्णु कहा जाता है। यकीन मानिए वो सर पे हाथ मारता रह गया, कहना आज तक हम विष्णु को समझ नहीं पाए थे। इसलिए कि विष्णु ये संस्कृत का लफ्ज है और विष्णु के माने हैं सेवियर, निजात देने वाला, जिसको हम मुंजी कहते हैं। देखिए, जब तक कि हमारा जवान कलमे मुंजी और विष्णु का माने नहीं समझेगा, वो तो सोचेगा विष्णु तो बहरहाल वो हिंदू भाइयों का कोई ठाकुर होगा, कोई मूर्ति होगा, कोई जो है अवतार होगा। लेकिन विष्णु के माने हैं मुंजी, जो काल्की के जमाने में आएंगे। बहरहाल मैं तोज़ी बयान करूंगा, लिहाजा ये मुकद्दमतन अर्ज कर रहा हूं सफा ब सफा, और बहरहाल जितना भी हो सके मैं खुलासा करके आपके सामने पेश करूंगा। याद रखिएगा, जैसे हमारे शेख जवाद हबीब साहब ने भी फरमाया है और तमाम उलमा हमारे फरमाते हैं कि मुंजी और मौऊद का जिक्र और तसव्वुर और उसकी हक्कानियत और ये मौजू हर मजहब की बुनियाद में है, नहीं ये कि शाख में है, मजहब की बुनियादी में है। जिस तरीके से हमारे बुनियादी एहतिकाद में इमामत है और आखिरी इमाम है, बस जरा सी चीजों में जो है वो इख्तिलाफ हो जाता है। फर्ज कीजिए किसी में उनकी तवल्लुद के ऊपर है, किसी में औसाफ के ऊपर है, किसी में बहुत सारी छोटी मोटी चीजों में है, लेकिन यानी रीशा और असल बुनियाद महदवियत हर मजहब में है। और सेवियर ऑफ द वर्ल्ड या सेवियर ऑफ द ह्यूमैनिटी का हर जगह जो है वो जिक्र है और इसमें आप इश्तिराक है। और ये एक ऐसा मौजू है कि जिस मौजू पे आप सबसे बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर इत्तिलाफ आपके पास हो। चलिए, हिंदू धर्म में आज हम 9 किताबों से आपके सामने बयान करेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने क्या कहा है, उन किताबों में क्या जिक्र आया है। सबसे पहले हम आपसे एक जुमला कह देते हैं, और ये एक ग्रामर है, फार्मूला है, मास्टर की है, इसको मत भूलिएगा। और वो क्या है, हिंदू धर्म में अवतार होते हैं, जैसे हमारे इमाम होते हैं 10वें इमाम, 11वें इमाम, 12वें इमाम, हिंदू धर्म में अवतार होते हैं। तो वो जो 10वें अवतार होते हैं उसको ही इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के हूबहू औसाफ और अलकाब उसके ऊपर जो है वो मौजू आते हैं। लिहाजा किसी से भी आप कहें और किसी भी हिंदू किताब में अगर 10वीं अवतार लिखा हो तो आप समझ जाइएगा यहां जिक्र हो रहा है हमारे इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ और आखिरी जमाने के बारे में। लिहाजा सबसे पहले जो बहुत ही मुकद्दस किताब है, और उस मुकद्दस किताब को पुराण कहा जाता है या संस्कृति तलफ्फुज में पुराण कहा जाता है। इस पुराण किताब में इमाम मेहदी के बारे में मुफस्सल बयान किया गया है और उस आखिरी जमाने को कालकी कहा गया है या कलकी भी कहा जाता है। और इस समान को यानी असर को युग कहा जाता है, 10वां युग यानी 10वां जमान। और इस जमान की तमाम तौज़ीहात हमारी इस्लामी किताबों से बहुत सी मुताबिकत खाती है। मैं एक एक करके आपके सामने बयान करूंगा। उसमें लिखा है कि कालकी के जमाने में यानी आखिरी दौर में 10वें अवतार पैदा नहीं, वहां आया है कि वो जाहिर होंगे। तसव्वुर कर रहे हैं आप, जिनका नाम विष्णु होगा। और मैंने अर्ज किया विष्णु संस्कृति लफ्ज है और विष्णु के माने हैं मुंजी यानी निजात देने वाला, बचाने वाला, सेवियर। फिर उसके बाद कहते हैं कि विष्णु जब इस दुनिया में आएंगे, जो 10वां मजहर होंगे या 10वां अवतार होंगे, वो आहानी और लोहे के जमाने के बाद आएंगे। और इस लोहे के जमाने को कालकी कहा जाता है पुराण किताब के हवाले से। वो घोड़े के ऊपर सवार होकर आएंगे और उस घोड़े का रंग सफेद होगा। उनके हाथ में एक बरहना तलवार होगी। उस तलवार की चमक इतनी होगी जैसे एक सितारा जो दुम्बालादार होता है, जो आसमान से गिरते हुए उसकी नूर जोफिशानी करती है, वो इस तलवार को लेकर अपने साथ जाहिर होंगे।
फिर उसके बाद कुरान में लिखते हैं कि वो दुनिया से तमाम शरीरों को, तमाम अजियत करने वालों को, तमाम शरपसंद लोगों को हलाक कर देंगे और साफ करेंगे दुनिया को। खिलकत को दोबारा से वो मुनज़्ज़म करेंगे, सिस्टम अता करेंगे और पाकी की रजअत फरमाएंगे। ये तमाम अल्फाज जो है वो हमारी किताबों से मुताबिकत करती है, आप कुरान में देख सकते हैं। यानी इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यहां पर कुरान कह रहा है और वो पाकी को दोबारा से पलटाएंगे इस धरती में, यानी इस सरजमीन पे। जब वो 10वें अवतार आएंगे तो याद रखना ए मानव जाति, यानी ए बशरियत, कि वो जमाना आखिरी होगा, उसके बाद जमाना नहीं होगा। उसके बाद बहरहाल मैं दूसरी किताब की जानिब जाऊंगा, उस किताब को भी नोट कीजिएगा, खुसूसन हमारे जवान जो दिलचस्पी रखते हैं तहकीकात से और ऐसे मौजुआत से। उपनिषद ये एक ऐसी किताब है, पाक पवित्र कहा जाता है हिंदू धर्म में, और अक्सर घरों में होता है और माबदों में, मंदिरों में पाया जाता है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की जीनत बनती है। उपनिषद किताब में जिक्र आया है कि विष्णु 10वीं अवतार आहनी जमाने में आएंगे, और सेम वही तौजीहात जो कुरान में है, वही तौजीहात यहां पर भी उन्होंने जिक्र किया है। पेज नंबर 737 नंबर, बाकायदा इसका इंग्लिश तर्जुमा भी आपको मिलेगा, जिसमें लोग पढ़ते हैं ही विल बी 10th in senior of the Vishnu, he will appear riding of the white horse। वही सब चीजें जो मैंने अभी बयान किया है, सफेद घोड़े के ऊपर सवार होंगे, शमशीर उनके हाथ में होगा, तमाम औसाफ जो है यहां पर बयान किया गया है, लिहाजा मैं तकरार नहीं करना चाहता हूं। चलते हैं हम, एक किताब है जिसका नाम है बास्क, बहुत ही मशहूर किताब है हिंदू धर्म की, BASQUE इसका जो है वो इमला है। उस किताब में लिखा है कि दुनिया का आखिरी जमाना होगा और दुनिया खत्म होती होगी, और इस दुनिया में एक बहुत बड़ा महाराजा जो आदिल होगा, जिसकी सिफत आदिल है, वो इस दुनिया में आएंगे और तमाम फरिश्तों के वो लीडर होंगे, यानी हादी होंगे, तमाम परियों के वो नेता होंगे, मैं अपनी जबान में हादी कह सकता हूं, और तमाम जमीन के रहने वाले इंसानों के वो अगुवाई करने वाले होंगे, यानी वही रहनुमा होंगे। हक और सदाकत को वो अपने साथ हमेशा लिए हुए होंगे, यानी जाल हक व ज़हक़ल बातिल, आप समझ रहे होंगे, अलीउल हक वल हक माल अली, ये सब तमाम चीजें जो है वो आप मुताबिकत करते रहिए, जबरदस्त। बहरहाल बास्क बुक में ये कहा गया है कि जो भी दरिया में और पहाड़ों में खजाने छुपे हुए होंगे और जमीन और आसमानों में जो कीमती चीजें छुपी हुई होंगी, वो उनकी खबर देंगे। तसव्वुर कीजिए, आखिरी इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में पैगंबर अकरम की वो हदीस है। आप फरमाते हैं कि इल्म के 23 बाब हैं। आज के जवानों के लैंग्वेज में बोल दूं, 23 फोल्डर है, और फोल्डर आप जानते ही होंगे, एक फोल्डर के अंदर कितने ही लाखों करोड़ों फोल्डर रख लीजिए, या फोल्डर को कितना बना लीजिए, कितना कॉपी कर लीजिए। जैसे एक शम्मा से लाखों करोड़ों शम्मा को आप कॉपी कीजिए, रोशन कीजिए, तो पहले वाले शम्मा की रोशनाई में कमी नहीं आती है। इसी तरीके से आप फरमाते हैं कि इल्म के 23 फोल्डर हैं, 23 बाब हैं, याद रखिएगा। इस 23 बाबों में से एक बाब को 11वें इमाम तक तमाम आइम्मा ने बयान किया होगा, और 22 बाब को मेरा आखिरी हुज्जत बयान करेंगे, क्योंकि वो जमाना हमवार होगा। बहरहाल मैं माहसल हदीस को बयान कर रहा हूं, यानी फर्ज कीजिए आज के जमाने में अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान एक फोल्डर के अंदर कर दो और इसको कॉपी कर दो मेरे लिए, तो आप कॉपी कितने सेकंड के अंदर कर देंगे? 5 से 10 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर 1400 साल पहले हमने वही कहा होता
کہ अमीरुल मोमिनीन एक रकाब से दूसरे रकाब में अगर चढ़ते हैं और कुरान बयान करते हैं तो लोगों की वुसअत कल्बी नहीं थी, या अगर रिसालत माँ की जबान चूसते हुए हम अगर ये कह दें कि अमीरुल मोमिनीन ने एक लम्हे भर की लिसाने वही को चूसने के बाद 4 किताबों की तिलावत की और उसका उलूम आपने जज्ब किया, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज का जवान समझ सकता है कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट रिसालत ने इमामत की, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उलमा से माफी चाहते हुए, ताकि ये जवान भी समझे। खैर, इस चीज को बहरहाल यहां पर भी उन्होंने बयान किया है कि जितनी भी जमीन दरिया में, आसमान में और पहाड़ों में खजाने और कीमती चीजें होंगी उसकी वो खबर देंगे, और उनसे बड़ी शख्सियत इस दुनिया में कोई नहीं होगी। ये तमाम चीजें बयान की है बास्क हिंदू धर्म की किताब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशन जोग एक बहुत ही अजीम किताब है हिंदू भाइयों के यहाँ। विशन जोल भी उसको लिखा जाता है, यानी JOOL, मिस्टेक मत कीजिएगा। इसमें जिक्र आया है इमाम मेहदी के जमाने और आपके औसाफ के बारे में। इसमें कहते हैं कि आखिरी जमाने में एक शख्स पूरी दुनिया पे भू यानी पूरी कायनात का अर्थ जिसको कहते हैं, पूरी कायनात में वो घूमेगा। अजीब जुमला है, और वो खुदा का दोस्त होगा। अल्लाह अकबर। देखिए इंग्लिश में ये लिखा है, eventually the world will turn toward the one whose name is auspicious, he loves God, यानी वो खुदा का दोस्त होगा और खुदा भी उससे दोस्ती करेगा। एंड ऑफ गॉड्स स्पेशल सर्वेंट, और वो खुदा का स्पेशल यानी खास बंदा होगा, खास खुदा का अब्द होगा। ये विशन जोल या विशन जोक आप दोनों तलफ्फुज कर सकते हैं, इस किताब में लिखा है। और अजीब बात कहा है कि वो खुदा के खास बंदों में से होगा। और एक वहां पर लिखा है उसमें औसाफ, उनका चेहरा फरखंदा होगा, यानी हमेशा लबखंद होगा। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, शिया हो या सुन्नी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, आज हमारे दुश्मन ने, खुसूसन जो हमारे शेख साहब ने भी फरमाया, गर्ब ने इमाम जमाना का, चूंकि उनको समझ में आ गया रोक हम सकते नहीं, ज़हूर से हम किसी भी हालत से, किसी भी टेक्नोलॉजी से रोक नहीं सकते, लिहाजा रोक नहीं सकते। नाउज़ुबिल्लाह उनका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करो, आप समझ रहे ना, उसकी शख्सियत बिगाड़ने की कोशिश करो। लिहाजा उनकी शख्सियत ऐसा हो जो हाथ में तलवार हो, तलवार से खून टपकता हुआ हो, यानी जल्लाद सिफत नाउज़ुबिल्लाह उनको बनाने की कोशिश की। खूंखार, उनके हाथ में जो है वो परचम हो, कलेमाए हक हो और अल्लाह अकबर कह के नाउज़ुबिल्लाह, और मासूमों को मारते हुए हो, जो आप देख भी रहे हैं। इसीलिए हमने कहा होशियार रहिएगा। जो बहरहाल पहचानने वाले होते हैं, यानी अपने जुमलों में कह दूं, जोहरी हजारों पत्थरों में से बेहतरीन नगीना चुन लेता है। लिहाजा आपको भी इमाम जमाना का जोहरी होना चाहिए, यानी इमाम जमान शिनास होना चाहिए, वरना आपके सामने बखेर दिए जाएंगे डुप्लीकेट इमाम जमान, आप समझ नहीं पाएंगे कौन से इमाम जमान है। लिहाजा उन्होंने ये चेहरा बनाया। लेकिन हिंदू धर्म की किताब में आप ये देखिए विशन जोक में क्या लिखा है कि उनका चेहरा फरखंदा होगा, लबखंद वाला, हमेशा मुस्कुराता हुआ, मेहरबान चेहरा होगा। अल्लाह अकबर। अरे भाई, हमारे किताबों में नहीं है, दूसरों की किताबों में है, कम से कम उसी से सीख लिए होते। लिहाजा इन सब चीजों पे आप जो इफ्तिखार कीजिए और तहकीक कीजिए। फिर एक जुमला उसमें कहा कि वो खल्क को जिंदा रखेंगे अपनी वजह से। क्या मतलब? यानी उसमें लिखा है कि अमृत जल उनके हाथ में होगा। ये संस्कृति लफ्ज है, यानी आबे हयात उनके हाथ में होगा। देखिए हमारे यहाँ इल्म को भी आबे हयात से ताबीर किया गया है। चाहे आप ये समझिए इमाम ज़मान इल्म देंगे हमें वो बशरियत को उस एतबार से, जिस एतबार से यानी टेक्नोलॉजी वगैरह का इल्म इमाम ज़माना देंगे। नऊज़ुबिल्लाह, इमाम ज़माना इस तरह नहीं होंगे कि जिस तरीके से हमारे कुछ जवान समझते हैं। यकीन मानिए वो जबानों के माहिर होंगे, इल्म के माहिर होंगे, साइंस के वो आलिम होंगे और उलूम देंगे। आज हमारे उलमा से जवान इसलिए दूर है कि हमारे उलमा, अलबत्ता सब नहीं है, मैं मुझ जैसे खाती की बात कर रहा हूं, कि हम जवानों की लैंग्वेज में नहीं बोल पाते, उनकी जहन को नहीं समझ पाते, उनकी तरह नहीं बोल पाते, उनकी साइंस में हम मिसाल नहीं दे पाते। अब भी हम 1400 साल के इस्तिलाहात में हैं। अगर कोई है, अगर मुझ जैसा खाती, तो हमें थोड़ा सा उनको नजदीक करके उनकी लैंग्वेज में भी बोलना है। और याद रखिए ये सिफत इमाम ज़मान है कि वो अपने जमाना
کہ हर इंसान की जहनियत और ज़ौक़ और उनके इल्म के मुताबिक आप कलाम करेंगे। बहरहाल इस किताब में आगे और लिखा है कि ये जो सेवियर होंगे, ये जो मुंजी होंगे, इनके हाथ में एक तलवार, एक शमशीर होगी। उसमें भी यही सिफत है कि वो शमशीर इस तरीके से नूर बखेरते हुए, कहीं भी खून का जिक्र नहीं है हिंदू धर्म की किताबों में, वो इस तरीके से दुम्बालेदार सितारों की तरह नूर बखेरती हुई होगी। और अजीब जुमला लिखा है, कहा कि उनके हाथ में एक अंगूठी होगी और ज़हूर के वक्त, यानी मैं अपने जबान में बोल रहा हूं कि जब वो इस दुनिया में आएंगे तो खुर्शीद और यानी आफताब और सूरज की तरह उनका चेहरा चमकता हुआ होगा, चांद की तरह। लेकिन उनकी उस चमक से सूरज और चांद की रोशनी मध्यम हो जाएगी, तारीक हो जाएगी, और जब वो आएंगे जमीन में जलजला आएगा। मेरे दोस्तों, उलमा तशरीफ फरमा है, स्कॉलर तशरीफ फरमा है, हालात जो हम देख रहे हैं, ज़हूर बहुत ही नजदीक है। अपना दामन बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, ईमान बचाइए। जरूरी नहीं है कि इमाम ज़मान को देखकर हम तौबा करें। करबो बला में इमाम हुसैन को देखने वाले शिम्र ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उमर साद ने देखकर शहीद किया था। मेरे दोस्तों, इमाम ज़मान को अगर आप पहचानेंगे तो देखकर ईमान लाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं बहुत ही जल्दी अर्ज कर दूं शेख साहब, वक्त हो जाता है। एक किताब है शाकमोनी, जिस किताब में हिंदू धर्म के बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर अर्ज करूंगा, अहले तहकीक जाएंगे और उसको तहकीक करेंगे, क्योंकि मैं दूसरे धर्मों के बारे में आज बयान नहीं कर पाऊंगा। उसमें लिखा है कि एक ऐसा इम्परातुर, एक ऐसा महाराजा इस दुनिया में आएंगे कि जिनकी इम्परातुरी, जिनकी हुकूमत दुनिया के तमाम मशरिक और मगरिब के पहाड़ों तक फैल जाएगी। अजीब जुमला लिखा है, कहा कि वो ऐसे सैयदे खलाइक के बेटे होंगे। मैं उसको तर्जुमा करके हुबहू आपके सामने ला रहा हूं, और जिनका नाम किशन होगा, किशन के वो बेटे होंगे। देखिए, संस्कृति जबान में अगर लफ्ज किशन का आप तर्जुमा करेंगे तो होता है आखिरी पैगाम देने वाला, यानी आखिरी मैसेंजर, किशन के माने। लिहाजा वहां शाकमुनी किताब में लिखा है कि आखिरी जमाने में यह आने वाला पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा, मगरिब और मशरिक के पहाड़ों पर हुकूमत करेगा, और ये सैयद खलाइक के बेटे होंगे कि जिनका नाम शाकमुनी, यानी इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, शाकमुनी के बेटे होंगे। और शाकमुनी का मैंने तर्जुमा आपके सामने किया है। वो इस दुनिया में आने के बाद हुकूमत करेंगे अदल के साथ, और फरमान देंगे जिन्नों इंस के ऊपर और बादलों के ऊपर वो सवार होंगे। ये किताब हमारे हिंदू भाइयों की है, लिहाजा मैं वहां से जिक्र कर रहा हूं, किसी को शक ना हो और इश्तिबाह ना हो। तमाम फरिश्ते उनके काम करने वाले मजदूर जैसे होंगे, हुबहू शाकमुनी के ये लफ्ज है। और सूदान का लफ्ज यहां पर आया है कि सूदान, अलबत्ता ये ज़ीरे खत्ते इस्तवा यहां जो है वो मंजूर लिया है उलमाए अहले हुनूस ने, कि ज़ीरे खत्तवा इस्तवा से यानी सूदान से 30 तक उनकी हुकूमत, यानी 30 कहते हैं कुतुब शुमाली के नीचे के इलाके को, यहां तक मावराए बहारा, यानी आज के आप जो है वो मावराउ नहर कह सकते हैं, जिसमें हमारे इस्लामी कुतुब में है कि कूफा में उनका दारुल हुकूमा होगा। ये शाकमुनी के लफ्ज है। देखिए कि मावराए बहारा और मावराए अकली में हफ्तुम, अकली में हफ्तुम कहते हैं सरजमीने हिंदुस्तान को हिंदू धर्म की किताबों में। तो मावराए अकलुम और इरम के बागों तक उनकी रसाई होगी और वहां तक वो अपनी हुकूमत करेंगे। लेकिन अजीब बात है, ये तवज्जो रखिएगा, खुद हिंदू धर्म की किताबों में है, कहा कि पूरी दुनिया का दीन दीन वाहिद होगा, एक दिन होगा और वो खुदा का दीन होगा, और उस दीन को वो दोबारा से जिंदा करेंगे। हमारे यहाँ भी ये जुमला है कि मुजद्दिदे दीन होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि नया दीन लेकर आएंगे, बल्कि दीन में माजरत में माफ कीजिएगा, कुछ इस टाइप के लोगों ने इतना बढ़ा दिया, घटा दिया, बिगाड़ दिया, कुछ अपने मफाद की वजह से, कुछ हुकूमती मफाद की वजह से। लिहाजा उनकी इस्लाह जब करेंगे तो लोग सोचेंगे ये नया दीन आ गया, जबकि नया दीन नहीं होगा, बल्कि वो इस्लाह करेंगे। जी, तो फिर आगे बहरहाल इस किताब में और भी बहुत कुछ लिखा है, लिहाजा मैं बहुत ही मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर का बेटा यानी किशन का ये बेटा जो दुनिया में आएगा बहुत बुरूमंद होगा,
ताकतवर होगा। अलबत्ता वहां लफ्ज जो है वो बहादुर और पहलवान के उसमें किया, लेकिन फिर अजीब जुमला है, कहा कि वो खड़ा होगा। देखिए खड़े का माने अगर आप करेंगे अरबी जबान में तो कायम होता है, जो हमारे यहाँ है लक़ब इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का। फिर उसके बाद कहा कि वो ईश्वर को जानने वाला होता है, यानी हम अपनी जबान में कहते हैं खुदा शनास। जिस तरीके से बहरहाल हम कहते हैं इसी तरीके से उस किताब में भी शाख मोनी में भी जिक्र है। दो किताबों का हवाला और बस मेरा वक्त तमाम हो रहा है। एक किताब है जिसका नाम है दाद तक। इस किताब में मुकद्दस तरीन किताब है, याद रखिएगा। इस किताब को ब्राह्मण समाज में, यानी जो हिंदू धर्म में सैयद खलायत समझ लीजिए या सादात कह लीजिए, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, आला नस्ल जो होते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान के 5 हिस्से हैं, सर से हम बने लिहाजा हम ब्राह्मण हैं, और ये आर्याई नस्ल से होते हैं। इसके बारे में फिर कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो ब्राह्मणों की जो मुकद्दस किताब है वो दातक है। उस दातक किताब में लिखते हैं कि आखिरी दौर में एक मुसलमान आएगा। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं कब ये किताब लिखी जा रही है, यानी इस्लाम के आने से पहले ये किताब लिखी जा रही है हिंदू धर्म में। और उसमें कहा जा रहा है कि जब आखिरी जमाना होगा, कल्कि का युग होगा, तो उस युग में, उस जमाने में एक मुसलमान ही होगा जो मुसलमान आएगा इस धरती के ऊपर, यानी जमीन के ऊपर। और तमाम मुसलमानों के दरमियान में मुसलमानों के जरिए से उस जमाने में जुल्म भर गया होगा। उलमा ने फिस्क इतना किया होगा मुसलमानों के कि फिस्क उनके दीन में सज गया होगा, और ताअद्दी और जुल्म उनके बादशाहों ने, आप अरब के बादशाहों को देख लीजिएगा, शराब तक उनके हाथों में है, और मक्के तक भी जो है वो जू के अड्डे आ गए हैं। लिहाजा ये इसी की तरफ इशारा है हिंदू धर्म की किताब दात तक में। कहते हैं कि हाकिम राजा मुसलमान इतना ताअद्दी और जुल्म करेंगे कि दुनिया भर जाएगी उनके जुल्म से। और अजीब बात है, तमाम चीजें कहा कि जितने जाहिद होंगे वो सब रियाकारी करने लगेंगे, और जितने अमानतदार समझे जाने वाले होंगे वो अमानत में खयानत के आदी हो चुके होंगे, और हसदों से दुनिया भर जाएगी। और जितने भी हासिद होंगे वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए होंगे, यानी एक दूसरे से तवाकुफ किए होंगे। इस पुरआशोब माहौल में कि जब ये जुल्म भर गया होगा, तब वो आने वाला मुकद्दस ब्राह्मण का पुत्र, यानी ब्राह्मण का बेटा वो आने वाला है। अगर ब्राह्मण का तर्जुमा करें तो ब्राह्मण का तर्जुमा होता है यानी सबसे दुनिया की बेहतरीन इंसानियत और इंसान का सरदार। ब्राह्मण का जो एक तर्जुमा ये भी है। दुनिया को वो जो जुल्म और सितम से भर गई होगी, वो बादशाह बनकर जुल्म से तमाम मजलूमों को निजात देंगे और बेरहम जालिमों से लोगों को निजात देंगे। रायत उस वक्त बेइंसाफ हो चुकी होगी, रायत के अंदर इंसाफ कायम करेंगे और एक दूसरे के ऊपर तोहमत में लोग पेशा होंगे। उस तोहमत जनी से इंसानों को रोकेंगे। आलिम पे कुफ्र का फतवा होगा और उलमा मानिंद लोग जलालत और गुमराही में, अलबत्ता यहाँ का पंडित का लफ्ज है जो उसका तर्जुमा हम अगर करें तो उलमा से होता है। ये तमाम दुनिया में बहरहाल जुल्म फैल जाएगा। उस जमाने में ममता का बेटा, ये दातक का लफ्ज है ममता, जिसको आप जो है वो कह सकते हैं कि इस्लाम आने से पहले हिंदू धर्म में ममता यानी लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायम खुजीन है कि ममता का बेटा वो ज़हूर करेगा। यहाँ भी लफ्ज पैदा नहीं है, वो जाहिर होगा और मशरिक यानी पूरब और पश्चिम है, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं, और मशरिक और मगरिब तक वो हिदायत करेंगे और बहरहाल हम लोग उसको कहते हैं हादी। अजीब जुमला यहाँ लिखा है कि उस जमाने में तुर्कों की हुकूमत मुसलमानों में होगी, यानी तुर्क हाकिम होंगे और मुसलमानों के अमीर होंगे और वो आने के बाद हक और सदाकत को लोगों से मनवाएंगे दलील के साथ। आखिरी किताब है जिसका नाम है पाटकिल। पाटकिल पुस्तक में हमारे हिंदू धर्म के इमाम मेहदी के बारे में, जी अगर वक्त खत्म हो गया तो मैं यही माफी चाहूंगा। इख्तिसार कीजिए, इख्तिसार से ही लास्ट किताब बयान फरमाइए। जी मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अर्ज कर दूं। पाटकिल किताब में लिखा है कि जब युग खत्म होगा यानी जमाना खत्म होगा, दुनिया जो है वो पुरानी हो चुकी होगी। उस जमाने में जिंदा करने वाला, मानवता को यानी इंसानियत को जिंदा करने वाला एक व्यक्ति, एक शख्सियत आएगी
जो नई तरीके से दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगी, यानी शायद इशारा हो नए टेक्नोलॉजी और नए इल्म की तरफ। अजीब बात यहाँ पर लिखा है, जो मैं खुलासा करूं तमाम चीजों से, लिखा है कि दो दुनिया के बड़े धर्मों के नेताओं का वो पुत्र होगा, यानी दो बड़े रहबरों का बेटा होगा। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर कीजिए, अगर इसको कुछ समझ सके तो वालिदा की जानिब से कैसर रूम से वो ताल्लुक रखते हैं, और वालिद यानी दतियाल की तरफ से वो दुनिया के कायनात के सबसे बेहतरीन शख्सियत से ताल्लुक रखते हैं। अलबत्ता वहां पर ये लफ्ज भी है कि वो सिद्दीक अकबर होंगे, यानी उनके दतियाल का जो शख्सियत है, और सिद्दीक अकबर या अमीर अल मोमिनीन का लक़ब है, या अमीर अल मोमिनीन का लक़ब है, जिसमें सिद्दीक अकबर बहुत बड़ा सच बोलने वाला। अलबत्ता मैं यहाँ इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, लिहाजा दो तीन चीजें यहाँ अर्ज कर दूं। उसमें कहा है कि इसका नाम पशिन होगा, लिहाजा तीन नाम हो चुके हैं हिंदू धर्म में, एक विष्णु, एक कृष्ण और एक पशिन। उसका नाम पशिन होगा, और पशिन का जो हमने तर्जुमा देखा है डिक्शनरी में, तो उसका माने है रहनुमा, हिदायत करने वाला, गाइड करने वाला, हादी के मान मुतरादिफ है। ठीक है। अलबत्ता यहाँ पर वो लिखा है कि वो राम का प्रतिनिधि होगा, यानी राम का जानशीन होगा। अलबत्ता राम का अगर अदद निकालें तो 3 मरतबा राम के अदद अगर आप निकालेंगे तो अल्लाह का अदद निकलता है। चलें आगे बढ़ते हैं, और राम का अगर जो माने निकालेंगे तो वो भी एक इलाही मैसेंजर की तरफ ही जाता है, ताकि वो राम का जानशीन होगा, और राम के नाम पर वो मोजिजा भी करेगा। यहाँ राम से मतलब अलबत्ता खुदा की जानिब इशारा है, और तमाम दुनिया में वो सुरफुरू होंगे। ये बहुत ही मुख्तसर तरीके से, मैं आगे भी बहुत कुछ है, बहुत से जो है वो उनके औसाफ बयान किया है, मैं इन दो सिफत को बयान करके बस खत्म कर दूं। एक क्या कहा है, जगन्नाथ मंदिर में और सोमनाथ के मंदिर तक उनका चर्चा होगा। सोमनाथ के मंदिर बहरहाल आप जानते हैं, और जगन्नाथ का मंदिर भी बहुत मशहूर मंदिर है, और वहां के जो कतीबा है 4,500 साल पुराना जो कतीबा है, उसमें भी इस किताब के कुछ शल्लोक यानी आयतें लिखी हुई हैं, उसमें भी इमाम मेहदी अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ का नाम जो है वो मौजूद है। मैं इसी के ऊपर इक्तफा करता हूं। मेरे नौजवान भाइयों को दरखास्त करूंगा कि वो तहकीक करें और अपनी मायनाज मतालिब को जमावरी करें, अपनी जबानों में मुंतशिर करें, और इसके ऊपर जो है इक्तफा ना करें, मजीद नई चीज खोज कर लाएं, तलाश करके लाएं। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह तैयब अल्लाह अनफाजुकुम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बहुत जबरदस्त बेहतरीन गुफ्तगू रही आपकी। वाक़अन जब हम और आप कहते हैं शायद कि एक इमाम ज़मान या मुंजी आलम बशरियत एक उम्मीद बख्श है पूरी आलम बशरियत के लिए, वाज़ह है कि हर मजहब के लोगों ने इस बारे में गुफ्तगू की है, और बिलखुसूस हिंदुइज़्म के तकरीबन आपने 7-8 किताबों का यहाँ पे जिक्र किया, 9 किताबों का, और मजीद किताबों के भी 9 किताबों का आपने जिक्र किया, और मजीद किताबें और भी हैं जो आप फरमा रहे हैं। बेहतरीन, यानी एक दीन के बारे में कामिल तौर पर कि इमाम मेहदी के हवाले से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये कि रिवायत हम पढ़ रहे हैं कि इमाम मेहदी के हवाले से इस्लामी कुतुब में। खैर जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हम आप दोनों बुजुर्गों का अदा करते हैं। वक्त भी काफी हो चुका है, और इसी पर मैं सोचता हूँ कि इख्तिताम करूँ। हमारे दरमियान जनाब बरादर गिरामी सैयद जमाल मूसवी क़िबला भी हैं, हम उनकी खिदमत में भी तबलीग पेश करते हैं कि ये हमारे वाक़ई एक्टिव स्टूडेंट्स में से हैं कि जो हमारे तमाम दीनी फरहंगी कामों में काफी हमारे मददगार साबित होते हैं। खुदा इनको भी जज़ाए खैर दें, और तकरीबन मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हैं डॉक्टरेट में इंशाअल्लाह। ये अपनी बेहतरीन अपनी जो काबिश है इनकी इंशाअल्लाह खुदा उन्हें वो कामयाबी अता फरमाए। आप दोनों का मैं असली दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल्ला जलील साहब, शेख साहब, सैयद जमाल बरादर गिरामी सैयद जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।